وارثی ہم دو سنا میں نہ اتر جانا کہیں. اب مفتی صاحب قبلہ نے ویڈیو کے اندر آدھے گھنٹے کی جو کچھ بولا ان کو میں تمام چیزوں کو تو حفظ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان کو لکھ لیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو الزام لگے ہیں میں ان کے جواب دوں گا تو پارٹ تو بنیں گے یا ویڈیو تو بڑی ہو جائے گی. مفتی صاحب قبلہ نے زیادہ تر ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جذباتی خیال کا اظہار کیا ہے اور جو مسئلہ تھا اس سے تھوڑا بہت ہٹ کے بھی دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی. جیسے پہلے بھی عبارت سے ہٹ کے دوسری عبارتیں مفتی صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے، بالکل ویسا ہی. میں سٹارٹنگ سے شروع کرتا ہوں، ایک ایک اعتراض کا جواب انشاءاللہ میں مفتی صاحب کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اتنا کہہ دیتے کہ میت کی تصویر کو ہم جائز سمجھتے تو ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. آپ نے یہ کیوں کہا کہ فتاوی رضویہ کے اندر ہے؟ تو مفتی صاحب قبلہ میں ہوا میں تو نہیں کہہ سکتا تھا ایسے کہ بھئی میرے نزدیک میت کی تصویر حلال ہے. تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا. آپ کو یہی بات بری لگی کہ فتاوی رضویہ کا میں نے نام کیوں لیا. اگر آپ کو اس بحث میں نہیں پڑھنا تو سیم چیز میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا تھا. اگر آپ کو یہ فتوے ہی دکھانے تھے علماء کے اور آپ ان فتووں کی تائید کے اندر تھے، ان کے فیور میں تھے، تو آپ یہ کہتے تھے فتاوی رضویہ میں میت کے تعلق سے کیا لکھا ہے میں نے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتہ، نہ ہی مجھے پڑھنا، نہ میرے علم میں ہے، لہٰذا یہ جو علماء نے فتوے دیے میں ان کے ساتھ ہوں. تو آپ بھی فتاوی رضویہ کا انکار کر کے فتووں کے ساتھ ہو جاتے تو ہم بھی اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہم بھی سمجھ لیتے کہ جو مفتی صاحب نے فتوے دیے ہیں آپ انہی پہ اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے بھی تو فتاوی رضویہ پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے نا کہ فتاوی رضویہ میں نہیں لکھا. تو آپ بھی تو یہ کہہ کے کہ میں فتاوی رضویہ کے تعلق سے کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا، تو ہم بھی اس فتوے کے ساتھ آپ کو سمجھ کے اپنے ٹاپک سے پیچھے ہٹ جاتے. دوسری بات آپ نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا اور اس بار بھی کہ دعوت اسلامیہ ہم لوگ تو ویڈیو ویسے بھی جائز سمجھتے ہیں، جائز بناتے ہیں، اور میت کی ہو یا غیر میت کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. زندہ مردہ جب ہم ویڈیوگرافی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو زندہ بھی جائز مردہ کی بھی جائز ہے. تو مسئلہ اس سے معلوم چلا کہ آپ کو شاید وہ سیپریٹ ٹاپک معلوم نہیں کہ ہم ڈیجیٹل کے اوپر بحث نہیں کر رہے. ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو کے اندر ہمارا تمہارا اختلاف ہے، لیکن پرنٹ آؤٹ نکالنے پہ تصویر کے ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں. اس پہ تمام علماء متفق ہیں کہ وہ حرام ہے. اور ہم جو یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ مردے کی تصویر کے پرنٹ آؤٹ کے جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ ڈیجیٹل. یہ تو ایک بچہ بھی سمجھ لے گا کہ جب ہم ویڈیو بنا کے زندہ کی ویڈیو ہی اور زندہ کی ڈیجیٹل فوٹو کو جائز سمجھ رہے ہیں تو ہم مردے کے اوپر بحث ہی کیوں کریں گے کہ اس کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے. تو یہاں مسئلہ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس تصویر کا ہے یا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا ہے جس میں دیکھنے میں لاش لگے. تو ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو اور پرنٹ آؤٹ دونوں میں فرق ہے. ڈیجیٹل کے اندر آپ کا ہمارا اختلاف ہے، پرنٹ آؤٹ کے اندر آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں. وہ دونوں حرام ہیں سوائے اس کے کہ میت کی تصویر کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، آپ ناجائز سمجھ رہے ہیں. تو پہلے آپ اس فرق کو بھی صاف سمجھ لیجئے. پھر آپ نے کہا کہ 15 منٹ کی ویڈیو بنا کے اخلاق پہ درس دے دیا. تو اخلاق پہ درس دین کا حصہ ہے اور اخلاق پہ درس قرآن و سنت کا ہی درس ہے، کوئی الگ چیز نہیں. اگر مجھے لگا کہ اخلاق کے معیار سے نیچے والی باتیں کچھ کی گئی ہیں تو میں نے اس میں اگر کہہ دیا تو کیا اس کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں ہو گئی. پھر میں نے اخلاق کا درس صرف آپ کو نہیں کہا، نہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے کوئی مجھے توہین والی ایسی کوئی بات کہی ہے، ایسا میں نے خاص آپ کو نہیں کہا. میں نے آپ کے آگے 3-4 علماء کے اور بھی کال رکھے جنہوں نے اس انداز میں گفتگو کی تھی کہ فلاں جاہل کو کیا پتہ، فلاں تو جاہلوں سے حوالہ سمجھ نہیں آیا، وہ یوٹیوب کا مولوی ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات. تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء کا جو معیار ہے اصلاح کرنے کا وہ طریقہ تھوڑا گفتگو کا معیار بہت زیادہ نیچے ایسا ہونا نہیں چاہیے، کم سے کم اپنوں کے تعلق سے. تو سیم اخلاق کے اوپر آپ نے بھی درس دیا اور آپ نے اپنے اخلاق کو، جذباتی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیلیں دی جو کہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں تھا. آپ نے اس کے اوپر غالباً نزہۃ القاری کی ایک عبارت پڑھی جس کے اندر یہ تھا کہ اب یہ کتا ہمیں سنت سکھائے گا. تو آپ نے اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو کس طریقے کی باتیں، جب مسئلہ غلط ہوتا ہے تو اس طریقے کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر یہی بات ٹھیک ہے تو آپ فتاوی رضویہ کے مسئلے میں اپنی پہلی ویڈیو میں یہ کیوں نہیں بولے کہ یہ کتا ہمیں فتاوی رضویہ سکھائے گا؟ اگر وہی دلیل آپ کے لیے معتبر ہے، صحیح ہے، تو آپ یہ جملہ یوز کر سکتے تھے. اور اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو مطلب آپ کا ضمیر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے جملے ویڈیو کے اوپر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے. میرا بھی وہی کہنے کا مطلب تھا. اور اگر وہ صحیح ہے، پیش کیے جا سکتے ہیں، تو اگلی ویڈیو میں آپ یہ ضرور بولیے کہ یہ کتا ہمیں میت کے ٹاپک کے اوپر سکھائے گا، کیونکہ آپ وہ دلیل میں پڑھ رہے ہو. تو اگر وہ چیز کہی جا سکتی ہے تو آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ چیز نہیں کہی جا سکتی. تو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ کہہ بھی دیں گے شدت سے، تو شدت سے رد کرنا ایک الگ چیز ہے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا الگ چیز ہے، اور دونوں میں فرق ہے. شدت سے رد کرنا، اپنے دلائل رکھنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا. لیکن اپنے الفاظوں کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا جو باقی علماء نے کیے، میں نے وہ مطلقاً بات کی، خاص آپ کے تعلق سے نہیں کی، بلکہ میں نے آپ کی تعریف کی کہ چلو آپ نے کتاب کھول کے پڑھا، بتایا، سمجھایا، اس پہ میں نے آپ کی تعریف بھی کی. تو اس پہ خاص آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. اگر میں نے کہا کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہمارے کچھ علماء کرتے ہیں اسٹیج سے، تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، عوام جانتی ہے، اور مجھے نام گنوانے کی بھی ضرورت نہیں.
इसके अलावा ताजुश शरीया अलैहि रहमा को लेकर आपने फरमाया कि हम अभी भी कहेंगे अगर आपके दिल में हसद है, यानी मेरे दिल में ताजुश शरीया का हसद है, ये बात आप अभी भी कहेंगे, ठीक है, कि आपने उनकी कॉल को हल्का दिखाया या ऐसा वैसा कमज़ोर करने की कोशिश की। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज के दौर में चल रहा है ना, हिंदू खतरे में है वाली जज्बाती और इमोशनल बातें, कुछ आप उसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि ताजुश शरीया की शान में गुस्ताखी हो गई, ताजुश शरीया का हसद है, ताजुश शरीया की ज़ात पे हमला हो गया। मतलब आप वही वाला सिनेरियो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के जहन में ये चीज़ आ जाए कि बंदा ताजुश शरीया का बागी है, हासिद है, उनसे उनका गुस्ताख है और उनकी कॉल को हल्का दिखाने की कोशिश करता है, नाउज़ुबिल्लाह। और यही सिनेरियो बार बार रिपीट करने की वजह से ये आपके बोए हुए बीजों के नतीजे में उगी हुई फसलों के कुछ नमूने हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट पे आपको पहले दिखाए कि लोगों के अखलाक कैसे हो गए, या वो कमेंट सेक्शन में हो या फिर डीएम में हो, वो ताजुश शरीया को मुझे गुस्ताख समझ रहे हैं क्योंकि आपने वो बीज बो दिया। लिहाजा मैं ताजुश शरीया का बागी हूँ या मैंने उनको कॉल को हल्का दिखाने के लिए या उनकी तौहीन की नियत से वो मिसाल पेश की थी, इसका फैसला बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला करेगा। लिहाजा आप ज़मीन पे खुदा ना बने, कम से कम लोगों के अंदर थोड़ा हुस्न ज़न पैदा करें, ना कि बदगुमानी पैदा करें। और मुझे यकीन नहीं होता है कि इतने काबिल आलिम दीन बदगुमानी के इतने शिखर पर हैं कि 2-3 मसलों में मैं आपको वजाहत करूं कि जब मैंने ये मसला पहली बार बताया तो मैंने ये सामने से मुंह से बोला कि ये मसला किसी तंजीम या शख्सियत के दिफा में नहीं है, ये एक मसले के तहत है कि फतवा रज़वी में ऐसा है या नहीं है। फिर भी आपने एक ही चीज़ की रट लगा ली कि अमीर दावत इस्लामी की हिमायत में, अमीर दावत इस्लामी की हिमायत में, जब सामने वाले ने मना कर दिया वो मसला हिमायत की नियत से नहीं है, वो एक मसले के तहत है। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि 2 शख्स के दरमियान किसी बात को लेकर कोई बात चल रही है कि कोई कहता है ऐसा है, दूसरा कहता है वैसा है। जब उसमें तीसरा शख्स बोलेगा और कोई उससे पूछेगा कि आप क्या कहते हो, अगर वो कोई भी 2 में से एक जवाब चुनेगा तो वो बाय डिफॉल्ट एक के फेवर में लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने फेवर किया है, जबकि उसकी नियत फेवर की नहीं होगी, वो अपनी राय भी रखेगा तो वो फेवर महसूस होगी। ठीक वैसे ही अगर 2 उलमा के मसले में आप अपनी राय दोगे तो एक को किसी को सही ठहराओगे, आप उनको जानते भी ना हो, फेवर भी ना करो, फिर भी एक के जवाब को जब आप हामी भरोगे तो वो ऑटोमेटिक फेवर में और दूसरे के खिलाफ में महसूस होगा। लेकिन जब सामने वाला खुद सामने से मना कर रहा है ऐसा नहीं है तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए। और एक चीज़ यह है कि मैंने ताजुश शरीया अलैहि रहमा के कॉल को हल्का दिखाया, उनकी शान में गुस्ताखी की, यह आपको तो लगेगा क्योंकि जब सामने वाला मुखालिफ होता है तो उसको हर चीज़ मुखालिफत के नज़रिए से वो देखता है तो उसको वैसा ही महसूस होता है। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी यह कहा कि नहीं, मेरी तौहीन की नियत नहीं थी, मैंने बट वाले मसले को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। जब कोई मुकदमा होता है तो उसकी नज़ीर वैसे ही मसला पेश किया जाता है कि जैसा वो मुद्दा चल रहा होता है, तो उसके मुद्दे में उस नज़ीर को मिसाल के तौर पर पेश करना वो गुस्ताखी नहीं होता। और आप ये कहते हैं कि हम फिर भी ये कहेंगे कि आपके दिल में ताजुश शरीया का बुग़्ज़ है, आपने उनकी कॉल को हल्का जताया। यानी एक शख्स सामने से मना कर रहा है कि वो कॉल हल्का जताने के लिए नहीं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे सवाल के पैरेलल जवाब को पेश करने के लिए वो कॉल वो बट का लिया गया था, उसके अंदर कोई तौहीन वाली ऐसी नियत बात नहीं थी। फिर भी आप कह रहे हैं कि वो बुग़्ज़ है, आप ये मानेंगे। तो बुग़्ज़ का मसला दिल के साथ है। आप इस मौलिकात में कैसे मुब्तला हो गए कि जो फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा उसका फैसला आप कर रहे हो? क्या ये आपकी बदगुमानी नहीं है कि आप सामने वाले से कहें कि उसके दिल में बुग़्ज़ है? और बुग़्ज़ अगर बातों से ज़ाहिर हो रहा है और हुक्म ज़ाहिर पे लगता है तो मैंने तो उस बात से ऑलरेडी रुजू कर लिया। तो जो रुजू मैं 10 दिन पहले कर चुका कि ठीक है, अगर आपको जो मेरे मुखालिफ हैं, हालांकि वो कोई तौहीन नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, लेकिन आप समझते हैं बुग़्ज़ है, तो मैंने कहा कि ठीक है, ताजुश शरीया अलैहि रहमा हमारे भी अपने हैं। अगर किसी अपने को भी, मुखालिफ को भी लगता है कि भाई मेरी बात हल्की सी लग रही है, तौहीन की तरफ जा रही है, तो मैं आइंदा उसका ख्याल रखूंगा। जब एक शख्स ने ये बात कह ली, उसके बाद सामने वाले का ये कहना कि नहीं हम तो फिर भी बुग़्ज़ कहेंगे, ये खुली बदगुमानी और खुला बहतान है। इसलिए रसूल आज़म ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, कि बेशक बाज़ गुमानों से बचो कि गुमान, बदगुमानी जो होती है वो सबसे बड़ी झूठी बात होती है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी फतवा रज़वी में फरमाया कि बदगुमानी खबीस दिल से पैदा होती है। अब एक सामने वाले शख्स ने उस बात से रुजू ही कर लिया कि ठीक है, अगर ये ऐसा था तो आइंदा नहीं होगा, ऐसा, और नियत मेरी तौहीन की नहीं है, वजाहत भी कर दी। उसके बाद आपका कहना नहीं हम तो अब भी यही कहेंगे कि बुग़्ज़ है, आपकी खुली बदगुमानी है और आपको इससे तौबा करना लाजिम है अगर आप इस बात को तस्लीम करें तो। वरना आप मौलिकात का दर्स अपने शागिर्दों को कैसे देंगे? कैसे आप पढ़ाएंगे हसद, ग़ीबत, चुगली क्या होती है, कैसी होती है? जब आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, बदगुमानी की डेफिनेशन बताएंगे, कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा नहीं कि तौबा करने के बाद भी आप कह रहे थे हम तो हसद ही मानेंगे। आप किस मुँह से हसद मानेंगे और आप किस राइट से हसद मानेंगे जब सामने वाले बंदे ने कहा कि आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और ये मेरे दिल में कोई हसद वाली बात नहीं थी, फिर भी ये कहना हम हसद मानेंगे, तो ये तो खुली बदगुमानी है। तो इसका जवाब आप दीजिएगा अगली वीडियो के अंदर कि बदगुमानी है या नहीं है और इसके ऊपर क्या हुक्म लगता है। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई जवाब गलत देता है और उसकी निस्बत अकाबिर उलमा की तरफ करता है या फिर किसी मोतबर किताब की तरफ करता है तो ऐसे जवाब यानी जज्बात वाले तो निकल ही जाते हैं, इसके अंदर कोई तौहीन नहीं है। ठीक है, तो यही पैरेलल मुद्दे के लिए ही मैंने बट वाला मसला पेश किया था कि अगर आपको लगता है कि कोई जवाब
किसी अकाबिर उलमा या किताब के अगेंस्ट में जाता है तो वहाँ पे जज्बात निकल के आते हैं, तो इसका मतलब आप उनके दिफा में बोलते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ताजुश शरिया रहमा के बट वाले मसले पे आपने कोई ज़्यादा कलाम नहीं किया, क्योंकि आपकी छोटी सी तहकीक पे जो मैंने बड़ी वाली तहकीक पेश की ना, उसके बाद शायद आपसे उसका जवाब नहीं बन पाया, क्योंकि आप ये कह रहे थे ताजुश शरिया रहमा जवाज़ के कायल है। तो अगर अकाबिर उलमा की तरफ किताब की निस्बत दी जाए और वहाँ ऐसा ना हो तो ये उलमा का मेयार है कि वो उसका रद्द करेंगे। ठीक है, अब आप इस पैरामीटर से मुझे बट वाले मसले को ये समझाइए कि ताजुश शरिया रहमा जब बट को जायज़ समझते थे और फतावा रज़विया पढ़ने के बाद आपने कहा कि बट नाजायज़ है, बट का खाना हराम है, फतावा रज़विया पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद जायज़ हो गया, तो जिस वक्त फतावा रज़विया पढ़ने के बाद नाजायज़ था तो ये किताब की तरफ निस्बत नहीं थी, तो यहाँ निस्बत किताब की तरफ थी, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपसे यही तो बोला कि इख्तिलाफी मसले या उलमा के एक चीज़ को दो अलग अलग उलमा अलग अलग समझ रहे हैं, तो उसको कैसे डील किया जाएगा आप आवाम को ये तो बताएं। आप सिर्फ जज्बाती बातें लेके बैठ गए, ताजुश शरिया की तौहीन हो गई, ताजुश शरिया पे हमला कर, ताजुश शरिया की शान घटा दी, ताजुश शरिया से बुग़्ज़ है, ताजुश शरिया का हासिद, और बस यही आप आवाम को जो है वो इमोशनल और जज्बाती सिर्फ बातें कर रहे हैं और टॉपिक से बिल्कुल हट के। लिहाजा ज़ात को हल्का जानने वाला मसला ही नहीं था, मसला ये था कि अगर किसी बड़े के सामने कोई सही चीज़ आती है वो अपनी गलत चीज़ से रुजू कर ले, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो मसला शान के खिलाफ नहीं है, वही बात आप भी कह रहे हैं। लेकिन आप देखें आपने वो जुमला कैसे इस्तेमाल किया ताजुश शरिया रहमा के बारे में कि 2-4 मसले किसी के इल्म में ना हो तो उसकी शान में कमी नहीं आती। अब मैं इसी को अगर ब्रेन वॉश करने के लोगों को कहूँ, यानी अगर ये मैंने बोला होता तो मुफ्ती साहब का जवाब क्या होता? वो इस तरह से कहते, किन के बारे में आपने 2-4 मसलों की बात की? ताजुश शरिया, जिनकी वो शान है उनको 2-4 मसले इल्म में नहीं होंगे, ये बात आपने कैसे कह दी? बड़े बड़े उलमा अपने मसाइल के लिए उनकी तरफ रुजू करते हैं, आपने इतनी हल्की बात कह दी कि 2-4 मसले ताजुश शरिया के इल्म में ना हो, तो अब लोगों को सुनने में कैसा लगेगा कि हाँ सही बात है। तो मतलब किसी भी सिनेरियो को किसी भी अंदाज में ढाल के पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बात खुद मुफ्ती साहब ने कही तो बहुत मीठा लगा सबको कि ताजुश शरिया के इल्म में 2-4 मसले ना हो, शान नहीं घटेगी। और मैंने ये कहा कि फतावा रज़विया ये कोई इबारत किताब की, यानी तमाम किताबों की इबारत ए से लेकर जेड तक सारी हिफ्ज़ हों, ये ज़रूरी नहीं। तो बोल रहे हैं तौहीन आपने ताजुश शरिया के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी? अगर आपको लगता है फतावा रज़विया ताजुश शरिया रहमा को हिफ्ज़ है तो आप इकरार कर लो, आपने इकरार भी तो नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूँ हिफ्ज़ नहीं है तो तौहीन हो रही है, आप इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे हो ना कि नहीं हिफ्ज़ नहीं है, लेकिन इकरार नहीं करेंगे कि आप हिफ्ज़ है, हिफ्ज़ नहीं है ये मानेंगे भी नहीं। तो ये तो दोहरा मयार हुआ, जो बात आप कह दो तो बहुत अच्छी है 2-4 मसले इल्म में ना हो, अगर मैं कह देता कि 2-4 मसले ताजुश शरिया के इल्म में नहीं है तो शान नहीं घटेगी, तो आप मुझ पर अटैक करते कि 2-4 मसले इल्म में कैसे नहीं, वो तो बहुत बड़े आलिम है, उनके कैसे इल्म में नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो सही है। लेकिन फतावा रज़विया मैं कह रहा हूँ कि पूरी हिफ्ज़ नहीं होगी किसी को, और नहीं है तो कोई शान में कभी नहीं, तो आपको बुरा लग गया कि कैसे ये कह दिया कि इस इबारत पे नज़र नहीं, फतावा रज़विया पूरी हिफ्ज़ नहीं। तो हिफ्ज़ है तो आप इकरार क्यों नहीं कर रहे कि फतावा रज़विया पूरी हिफ्ज़ है? मैं मान लूँगा ठीक है मेरी गलती है। फिर आपने कहा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके बारे में कहा था कि आपने फतावा रज़विया से अलग अलग इबारतों को पढ़ के तोड़ जोड़ने की कोशिश की, तो इसके जवाब में आपने ये बोला कि सिकंदर वारसी ने भी यही बात की, आप उनकी वीडियो देखिए, उन्होंने भी अलग अलग जगह से इबारतों को पढ़ा है, तो जो काम उन्होंने किया वही हमने किया, तो हम गलत कैसे? तो मोहतरम मुफ्ती साहब, आपने जो अलग अलग इबारतों को पढ़ा था और उसका अपना मन मर्जी मफहूम बनाया था, मैंने उन अलग अलग इबारतों को पढ़ के वो मफहूम बताया था जो फतावा रज़विया में है। तो आपका पढ़ना और मेरे पढ़ने में फ़र्क है। आपने जो पढ़ा मैंने वही चीज़ पढ़ी ताकि मैं बताऊं कि यहाँ कहाँ आपको समझने में और मफहूम को समझने में गलती हुई, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पढ़ा था। दूसरी चीज़ ये कि इधर उधर से पढ़ना, ये वाली बात मैंने अकेले नहीं बोली, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब सवाल मैयत की तस्वीर का है, आप दलील जानदार की तस्वीर पे पढ़ रहे हो। तो आप जो इधर उधर से पढ़ रहे थे ना, वो आप जानदार की दलीलें पढ़ रहे थे, जिस पे आवाम भी आपको ये तंबीह कर रही थी कि आप जानदार की दलीलें पढ़ रहे हो, मसला मैयत की तस्वीर का है, यानी मारे घुटना फूटे सर। तो ये मिसाल तो यहाँ पे ज़्यादा फिट होती है कि आप जो कह रहे हैं वो पब्लिक भी आपको कह रही थी, और मैंने जो पढ़ा वो आपके पढ़े हुए को समझाने के लिए पढ़ा। वरना आप मेरा दूसरा पार्ट देखें या जिसने भी देखा होगा, मैंने चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ा है और सारे सिनेरियो को पहले थ्योरिकल फिर प्रैक्टिकल बताया है। तो इसलिए मेरा पढ़ा हुआ अलग अलग से नहीं है, वो उन सेम इबारतों का पढ़ा हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि आपने किस पैराग्राफ को पढ़ के कहाँ डंडी मारने की कोशिश की, क्या आपने उसकी वजाहत में कोई जवाब दिया? आपने जवाब में ये फतवा उठा लिया कि ये देखिए ये मुफ्ती साहब ने ऐसा बोला, ये मुफ्ती साहब ने भी यही समझा, हम तो सही समझे। अगर आपको इन फतवों के साथ जाना ही था तो आप पहले कह देते, आप पढ़ के ही नहीं दिखाते फतावा रज़विया। आपने जो पढ़ के दिखाया ना, उसमें आपने पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की। ठीक है, पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की, मैंने वही धोखा बताया था कि आपने कहाँ धोखा देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे आपने फतावा रज़विया का ये पेज पढ़ा था, पेज नंबर 588, जहाँ ये लिखा है कि इसमें शक नहीं कि तस्वीर चाहे
हाफ कद की हो यानी सीने तक हो या चेहरे की हो, हरगिज मिसले शजर नहीं होती और ना ही मिसले मुर्दा होती। तो आपने इस इबारत पे बहुत जोर दिया। देखो आला हजरत ने कहा कि अगर हाफ फोटो हो, चेहरे की तस्वीर भी हो, तो वो मिसले सजर नहीं हो सकती, चेहरे की तस्वीर मिसले मुर्दा नहीं हो सकती, लिहाजा चेहरे की तस्वीर तो जानदार होती है। जबकि मैंने ये पढ़ के ये बताया था कि इसका सियाको सबाक क्या है और ये आला हजरत ने किस पैराग्राफ को किस सिनेरियो में लिखा है। आपको वो बात समझ नहीं आई, अगर समझ आई तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ जज्बाती बातें लेके बैठ गए, ताजुश शरिया की तौहीन, ताजुश शरिया के साथ पे हमला, ताजुश शरिया के बागी, ताजुश शरिया से हसद। वहां से निकल के थोड़ा सा फतावा रज़विया की इबारतों पे आप बात करते तो अच्छा रहता। आपने पढ़ा और आपने समझाया कि मसला ऐसे ऐसे, फिर मैंने पढ़ के समझाया कि आपने कहाँ गलती की। आपको चाहिए था कि उस पर आप जवाब देते कि आप जो मेरी गलती बता रहे हो या गलती नहीं है, जो आप पेश कर रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जैसा मैं समझाऊं, तब बात बनती। बजाय ये कि आप पब्लिक को जज्बातों में लाएं और जज्बाती बातें करें। फिर आपने ये 2 फतवे दिखाए। इन 2 फतवों के अंदर, दोनों फतवों में सबसे कमाल की चीज ये है कि इसमें 2 सवाल है और दोनों में 2 सवाल है। पहला सवाल कार्टून के ताल्लुक से, कार्टून बनाने का हुक्म। मैं तो असल में इसको खुदा गवाह है कि मैं सिर्फ पढ़ इसलिए रहा था कि मैं मैयत पे दलील देख सकूं, सामने वाले की क्या दलील है मैं उसे पढ़ सकूं। मैं कभी भी फतवा बहस के तौर पर नहीं पढ़ता। जो लोग भी मुझे फतवा भेजते हैं या जिन्होंने भेजा है कि फला मुफ्ती साहब का बयान सुनो, मैंने बाकायदा उसको शौक से सुना और पढ़ा ताकि मैं देखूं कि सामने वाले की क्या दलील हो सकता है वो दलील मेरी ज्यादा करीब हो, समझने में आसानी हो। तो यहाँ मैं तस्वीर पे तो पहुंचा भी नहीं था मैयत की, पहले कार्टून के मसले पर नजर पड़ी दोनों फतवों की। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं कार्टून पे ही बात कर लूँ, यानी लेने गए आलू हाथ आ गया भालू। तो पहले आप इसके ऊपर ये देखिए, आप ये कह रहे हैं हमारे अकाबिर ये गलत समझे या सही समझे। इसके ऊपर जो मुफ्ती मिराजुल कादरी साहब हैं, इनसे और इनसे सेम ही सवाल हुआ। सवाल ये है कि जो कार्टून फर्जी होते हैं, यानी जानदार के नहीं होते, वो सिर्फ बना दिए जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह, कान बना दिए जाते हैं, वो कार्टून तस्वीर के हुक्म में है या नहीं। और इस सवाल के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है वो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के अल्फाज ही लिखे हुए हैं पूरे, जिसके अंदर फर्जी कार्टून का जिक्र और साथ में ये भी जिक्र है कि ये मखलूक दुनिया में पाई नहीं जाती। इसके जवाब में जो मुफ्ती मिराजुल कादरी साहब ने जवाब दिया वो दिया कि कार्टून भी तस्वीर के हुक्म में है, अगरचे फिल वाकई इस तरह का कोई हैवान नजर से ना गुजरा हो। उमूमन जितने कार्टून बनाए जाते हैं उनमें ऐसा सिर जरूर होता है जिसके अंदर आंख, नाक, कान वगैरह मौजूद हो, और हैवान जीरो का तस्वुर सर से ही होता है बल्कि सिर्फ चेहरे से होता है। यानी ये मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि वो कार्टून के जो फर्जी होते हैं, नकली बना दिए जाते हैं, ऐसी मखलूक पाई नहीं जाती। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो कार्टून बनाना हराम है। इसी तरह आपने जो दूसरा फतवा दिखाया, सवाल सेम है लेकिन अल्फाज वो नहीं है कि जो अमीर अहले सुन्नत के अल्फाज थे वो नहीं है। सिर्फ सवाल करने वाले ने सीधा सवाल पूछा कि कार्टून तस्वीर है या नहीं। तो इसके जवाब में ये मुफ्ती साहब मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब ये कार्टून के जवाब में 2 कैटेगरी डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि जो जीरो की कार्टून है वो कार्टून जो है वो जायज नहीं है, बनाना हराम है, और जो गैर जीरो की कार्टून है जो दुनिया में मखलूक पाई नहीं जाती वो बनाना जायज है। यानी यहाँ तो सवाल पूरा खुल के भी नहीं बताया, साहिल ने सिर्फ कार्टून का हुक्म पूछा और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने 2 कैटेगरी करके दोनों का अलग अलग हुक्म जवाब में बता दिया। और यहाँ इस फतवे के अंदर जो साहिल ने पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूछा कि वो फर्जी कार्टून है, पाया नहीं जाता, तो भी मुफ्ती साहब ने मुतलकन जवाब दिया कि ये हराम है। यानी ये दोनों फतवे कार्टून के मसले में खुद एक दूसरे के खिलाफ हैं। और यहाँ तो पूरा सवाल है फिर भी जवाब मुतलकन हराम होना है, यहाँ सवाल भी अधूरा है फिर भी जवाब इसके अंदर जायज है। यानी जो नक्शे में था वो बना ही नहीं और जो बना है वो नक्शे में था ही नहीं। आप कहते हैं कि ये हमारे अकाबिर हैं, ये सही समझे गलत। मैं पूछना चाहता हूँ आपके अकाबिर आपस में तो पहले इनका इत्तेहाद करा लो। कार्टून के मसले पे ये अलग अलग क्यों हो रहे हैं? कार्टून के मसले पे एक जायज एक नाजायज, वही फतवे जो आप दिखा रहे थे। यानी मैं तो इसको तस्वीर के लिए पढ़ रहा था, ये तो हाथ में मेरे कार्टून का मसला आ गया, मैंने सोचा पहले इसे पढ़ लें। तो आप पहले इसको हल करा लें कि आप कार्टून के ताल्लुक से क्या समझते हैं। ऐसी कार्टून के जो पाई नहीं जाती उससे मुराद गैर जीरो की कार्टून है, मतलब कार की किसी ने आंख नाक कान बना दी, ये फर्जी है। हकीकत में कार जैसी कोई जानदार चीज नहीं होती दुनिया में, कार जैसी कोई मखलूक ऐसी नहीं पाई जाती जानदार, यानी जीरो में कार बना दी, किसी ने पहाड़ की आंखें बना दी। तो यहाँ उस कार्टून का जिक्र था, सवाल में भी दर्ज है, मुफ्ती साहब ने फिर भी कहा नाजायज है। आपके मुताबिक ये जवाब सही है। और मैं आपको ये वजाहती बयान भी सुना दूं दावत इस्लामी का कि ये उसी कार्टून की बात कर रहे हैं जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप ये मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। उसके ऊपर कार्टून बनाने का जो मसला है वो यूं है कि एक है ऐसी शय का कार्टून बनाना कि जिस तरह की जिंदा शय हकीकत में वजूद रखती है,
या उसके करीब करीब, जैसे किसी जानवर का कार्टून या किसी इंसान का कार्टून या किसी बच्चे या बच्ची की शक्ल सूरत वाला कार्टून या किसी परिंदे का कार्टून, ये वो सब चीजें हैं कि जो हकीकत में भी जिंदा मौजूद होती हैं। तो ऐसी ज़ीरो चीजों का कार्टून ऐसा बनाना कि जो असल के बिल्कुल मुताबिक है या करीब करीब है, ये तो जायज नहीं। और एक ये है कि कार्टून ऐसा बनाया जाए कि जिसकी मिसल कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज की एक तस्वीर है, अब उसी के अंदर 2 आंखें लगाई और एक लकीर लगा के तो उसका कार्टून बना दिया। तो अब सूरज तो इस तरह ज़ीरो सूरज के अंदर मौजूद नहीं, या दरख्त है तो दरख्त के अंदर भी 2 आंखें लगा के थोड़ी सी लकीर पैंट से दी। यानी इस जवाब से वाज़ेह हो गया कि कार्टून के मसले में तो ड्राइंग बनाना वो बेजान और जो मखलूक पाई नहीं जाती उससे मुराद वो बेरूह की मखलूक है, जो कि ये जवाब ज्यादा हक के करीब लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 कैटेगरी में डिफाइन करके जवाब दिया है। पहले 2 कैटेगरी करी और उसके अंदर बताया कि ये वाली कि जिससे हयात उसका जीरो होना करार दे वो तस्वीर हराम है, और वैसी पिक्चर या वैसी वाली ड्राइंग के जिसके अंदर हयात जो है वो जीरो का नहीं बल्कि गैर जीरो का करार पाए, उसकी हयात उसकी हिकायत गैर जीरो की करे, तो वो जो है वो तस्वीर नहीं है और उसका बनाना जायज़ है। तो ये दोनों मसलों में तो पहले इत्तिहाद नहीं हो रहा, जवाब बिल्कुल अलग है, सवाल सेम है। तो फिर मैयत वाले मसले में जाहिर सी बात है, ये लाइव प्रूफ है कि एक चीज़ को समझने के लिए 2 उलमा अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, ये लाइव प्रूफ है। तो इसलिए फतावा रज़विया को समझने के लिए जाहिर सी बात है कि आपने कुछ और समझा, मैंने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, तो इसमें अगर मैं आपकी राय से इत्तिफाक नहीं कर रहा तो तौहीन हो रही है इसमें। आप ही हमें इसका जवाब भी दे दीजिए, बदगुमानी का जवाब भी दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि वो तस्वीर जो कार और कार्टून की होती है क्या वो तस्वीर हराम है, और अगर हराम है तो इन दोनों में से फिर एक का ही फतवा सही है, दूसरे का फतवा एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल जाहिरी तौर से अगेंस्ट है। लिहाजा इन फतवों के ऊपर जो मैयत की तस्वीर पे उस पर इंशाल्लाह मैं बाद में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो मैं बाद में कलाम करूंगा। मुफ्ती साहब इतने सारे एतराज करते हैं तो जाहिर है जवाब तो दूंगा ना, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, कोई पूछे तो मुद्दा क्या है। फिर आप कह रहे हैं कि फतावा रज़विया को आप ज्यादा समझे या ये बड़े उलमा बड़े अकाबिर ज्यादा समझे। ये बात सुनने में इमोशनली तो बहुत अच्छी लगती है और ये हक के करीब भी लगती है, लेकिन 100% ऐसा हक नहीं होता कि जो बड़ा है वो हर मसले को सही समझ ही ले। ये छोटे पर ये मोहर नहीं लग गई कि छोटा हमेशा अब जिंदगी में वो गलत ही होगा। ये रूल रेगुलेशन आपके खुद के बनाए हुए हैं, जो आपने मसले के आला हज़रत का लेबल लगा के रख रखा है कि हम फैसला करेंगे ये तौहीन है, ये बगावत है, ये बागी है, ये हासिद है। इसका जवाब सही नहीं है, इसको समझ नहीं आया। जो आपकी फिक्र के मुताबिक जवाब है उन सबको समझ में आया, जो जवाब आपकी फिक्र के मुताबिक नहीं है उनको जवाब नहीं आया। और मसला मैयत की तस्वीर से ज्यादा ना फोटो का है, क्योंकि आपको फोटो से इख्तलाफ है, इसलिए आप फोटो वाले जवाब को रद्द ही करेंगे। तो ये जो कार्टून के बारे में सवाल पूछा गया, क्या मुफ्ती साहब ने सिर्फ दावत इस्लामी का नाम देख के फतवा तहरीर कर दिया कि दावत इस्लामी ने ऐसा कहा अच्छा हराम है, बस उसको ये भी नहीं डिफाइन करा सवाल को कि किस तस्वीर की बात हो रही है। ऐसे कार्टून जैसे कारवार की तस्वीरें वो कहाँ से हराम हो गई। और अगर ये मुफ्ती साहब समझ गए थे तो ये मुफ्ती साहब जो कि मुझे लग रहा है कि शायद तखस्सुस फिल फिक्र के अभी स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर ये इस कैटेगरी को कैसे समझ लिया, और दोनों फतवे अशरफिया के। और आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर सिग्नेचर दोनों पे किसके हैं? मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब के। उन्होंने कहा ये जवाब सही है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब ने कहा कि तस्वीर जो है वो जिंदा मुर्दा दोनों की हराम है, और ये जवाब सही है। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब ने वीडियोग्राफी के हराम होने पर भी यही कॉल लिखा है कि ये जवाब सही है, और आप तो वीडियोग्राफी पे आते हैं, तो फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरा बताइए। लिहाजा आपको वीडियो में चाहिए था जज्बाती बातों के अलावा आप फतावा रज़विया में वो बातें पढ़ते जहां आपने पढ़ने में डंडी मारी और इबारतों को कुछ से कुछ उसका मफहूम बनाया, और आगे पीछे सियाको सबाक को आपने बेकार में जोड़ने की कोशिश करी जिसका ताल्लुक आपस में था नहीं। आप उस पर कलाम करते तो ज्यादा अच्छा रहता, ना कि ताजुश शरिया की जात पे हमले को लेकर आप नेक्स्ट टाइम कोई बात करें। और उससे मैं ऑलरेडी रुजू कर चुका हूं कि अगर आपको तौहीन लगी है तो भी मैंने उससे कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने फिर भी ये कहा कि हम फिर भी उसको हसद ही समझेंगे, तो यानी आप बदगुमानी में मुब्तला हैं। जरा इसकी वजाहत भी आप नेक्स्ट वीडियो में करिएगा। उसके बाद मैयत की तस्वीर पे वापस आएंगे इंशाल्लाह, इससे जाएंगे नहीं, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। और अगर कोई उम्र में बड़ा है और वो ज्यादा बेहतर समझ गया, वो हमेशा सही होगा, तो आप इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि कपड़े मोड़ने के ताल्लुक से जो स्वेटर बाजार में मोड़ कर ही पहना जाता है, उस पर ताजुश शरिया रहमा का ये जवाब है कि उस स्वेटर को भी नीचे से मोड़ना मकरूह है। जबकि कली मनफी साहब का ये जवाब है कि ऐसा कपड़ा कि जो उर्फ आम में मुड़ा हुआ होता है उसमें नमाज मकरूह नहीं होती, क्योंकि वो कफे सौ के मामले में जो कपड़ा उर्फ में मुड़ा है वो मुड़ा ही रहेगा, जैसे कि कॉलर। ताजुश शरिया रहमा कॉलर के मोड़ने को भी मकरूह करार देते हैं, और स्वेटर को नीचे से फोल्ड करके, जबकि स्वेटर फोल्ड करके पहना जाता है, उसको भी मकरूह करार देते हैं। जबकि कली मनफी साहब जो उनके खलीफा भी हैं वो इसको जायज़ देते हैं, करार देते हैं। तो अब उम्र में कौन बड़ा है
اور آپ کس کے فتوے کی تائید کریں گے سر, آپ مجھے یہ بتا دیجئے. اور دوسری ایسی ہی سیم مثال میں دوں گا کہ بٹ کے مسئلے میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ آپ کے مطابق مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتوے کو فالو کر کے بٹ کو جائز قرار دیتے ہیں, جبکہ تاج الشریعہ حرام کس کے فتوے کو سمجھ کے کہتے تھے؟ فتاوی رضویہ کو. انہوں نے خود بیان کیا کہ فتاوی رضویہ سے یہ ظاہر ہے کہ بٹ حرام ہے, اور آپ کے مطابق مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے کہ بٹ حلال. تاج الشریعہ نے مفتی اعظم ہند کے فتوے کی طرف رجوع کیا, تو چھوڑا کس کا فتویٰ؟ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا ٹیکنیکلی یہی لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چھوڑا تبھی تو مفتی اعظم ہند کا فتویٰ مانا, تو چھوٹا کون تھا بڑا کون تھا؟ آپ یہ چھوٹے بڑے کی ڈیفینیشن یہ ڈیفائن نہ کریں, شریعت کا معیار چھوٹے بڑے پہ نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے یا جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اس کے حق پہ ہونے کے زیادہ چانس ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ چھوٹا ہمیشہ غلطی پر ہی ہوگا کہ آپ توبہ کر لو, رجوع کر لو. آپ نے توبہ رجوع کی بات کری, فتاوی رضویہ پہ تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کری, تو وہ ہمیشہ چھوٹا غلطی پہ, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. لہٰذا میت کے تعلق سے جو آپ فتویٰ دکھا رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو میں بعد میں وضاحت کروں گا. پہلے آپ اس بدگمانی کا جواب دیں کہ توبہ کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ آپ کے دل میں حسد ہے. آپ پہلے اس کا جواب دیں, کیونکہ آپ ایسا لگتا ہے کہ مہلکات میں مبتلا ہیں اور کہنے سننے میں کچھ باتیں اونچ نیچ ہو گئی ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیان کرتے وقت ایسا ہو جاتا ہے. اور آپ ذرا اپنے پبلک اور عوام سے بھی کہیں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر زیادہ وکیل بننے کی یا لان تان کرنے کی کوشش نہ کریں. اتنا تو آپ بھی ویڈیو میں کچھ نہیں کہتے جتنا وہ جواب کی جلدی مچا دیتے ہیں. پھر آپ کی یہی باغی اور بغاوت اور حسد والی باتوں سے ہی وہ لوگ سیکھتے ہیں جو آگے چل کے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ لڑائی اور بحث ہوتی ہے. میں نے اب تک اپنی ویڈیو میں تمام بہت نرمی لہجے اور نرم لہجے کے ساتھ ہی بات کی, اور اختلافی مسائل کیسے ڈیل کرتے ہیں میں نے وہ بتایا. میں نے کسی پہ لان تان کیا نہیں, اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ آپ مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کریں. جب ان پہ وقتوں کا جواب دیں گے ان کے دلائل کو سنیں, اور یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ اس لیے تاکہ آپ لوگ دونوں کے دلیل سن لیں, جو اختتام تک مسئلہ پہنچے وہ جان لیں. اس میں کوئی لڑائی یا آپسی ذاتی رنجش والی بات ہے نہیں, تو لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو لڑائی کا روپ دینے کی کوشش نہ کریں. بالکل بھی میری طرف سے ایسی کوئی بھی نیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں سامنے والے کے دلائل کو دیکھوں سنوں, لیکن مفتی صاحب نے دلائل پہ بات نہیں کری, فتاوی رضویہ پہ بات نہیں کری, صرف فتویٰ دکھایا کہ ہم اس فتوے کے فیور میں ہیں. تو آپ کہہ دو کہ فتاوی رضویہ کے تعلق سے ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہم اس فتوے کے فیور میں بات ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ اپنے دلائل پہلے فتاوی رضویہ میں دکھائیں, اور اس کے بعد یہ بدگمانی والے جواب دیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں تصویر والے اس واپس فتوے کے اوپر آؤں گا, اور فتاوی رضویہ کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا بہت شارٹ ویڈیو میں 10 منٹ کے اندر کہ فتاوی رضویہ میں کہاں لکھا ہے کہ میت کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے. جان